Okay children, once again start. Today we are discussing about differentiability. Firstly, what is the differentiation? What is the differentiation? Tell anybody. Tell anybody. What is the meaning of differentiation? Reply, don't waste time. But I am asking you, then reply. So what is the meaning of differentiation? In very simple, finding the process of a function. Finding a process of a function is called differentiation. Simply take any function and finding the process of a function is called differentiation. Okay, तो differentiation में finally आपने कोई choose किया function like fx is equal to ax plus b. fx is equal to ax plus b. This is the function. तो मेनली इसको हम पढ़ते क्या है कि fx की जो वैल्यू है वो ax plus b से बिलोंग करती है. ठीक, जब इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना होता था या इसका कंपोजिट फॉर्म का डेरिवेटिव्स करना होता था. डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन, इस तरह के कोलैबोरेशन से आप इसको पढ़ते थे. तो fx इज इक्वल टू fx प्लस ax प्लस b. तो इसका डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करते थे f डैश इज इक्वल टू ax प्लस b. तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा? सिंपली a हो जाएगा. ठीक, एंड अब इसमें डिफरेंशिएशन से लास्ट 11th क्लास स्टैंडर्ड में आपने बहुत से फंक्शनों को डिस्कस किया था. अगर बेसिकली हम लोग फोकस करना चाहें y इज इक्वल टू x टू द पावर n टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन आप रिप्रेजेंट करते थे. डिफरेंशिएशन मींस डेरिवेटिव्स ऑफ dy dx विद रिस्पेक्ट टू x. तो कोई भी वैल्यू हमारे पास रहती थी हम उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे. सो dy dx ऑफ y इन dy dx ऑफ x मींस 1. कैसे? फाइनली अगर आपने x टू द पावर n बिलोंग किया तो x टू द पावर n का फंक्शन यहाँ बन जाता था n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 बन जाता था. फाइनली y इज इक्वल टू ax टू द पावर n. तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया, बट a इज द कांस्टेंट. a इज द कांस्टेंट. सो अगेन dy by dx is equal to a, but we can write dy dx x to the power n means a n x to the power n minus 1. Okay, and last y is equal to choose any trigonometric function. Choose any trigonometric function. Y is equal to sin x. So differentiation dy by dx is equal to cos x and y is equal to cos x. Then differentiation dy by dx is equal to minus sin x and y is equal to sec x. Differentiation of sec x into tan x and y is equal to tan x sec square x. dy by dx is equal to sec square x. So this is the basic formula of differentiation. This is the basic formula of differentiation. But in this exercise, combinations of lots of function based on implicit function firstly, and the main important thing, composite function. Composite function. Give any example of composite function. Give any example of composite function with differentiate to x, like mod of sin x. ठीक, like x plus a whole square. x plus a whole square. Suppose y is equal to take any function x plus 1 whole square. This is composite. This is composite. Yes or no? This is composite. ठीक, suppose like more than x square plus 3x plus 9 whole to the power 2 again. So this is also composite. कंपोजिट की मीनिंग क्या हो जाएगी कि जब हम x के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास x टू द पावर n का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो फाइनली फाइंड होना चाहिए. इन केस अगर नहीं होगा तो उस कंपोजिट फंक्शंस को हम पहले रिजॉल्व करेंगे.
रिजॉल्व करने का मतलब होगा कि हम फाइनली किसी चीज़ को वहाँ पर सपोज करेंगे और उस कंपोजिट फंक्शन को मिनिमाइज करके ला करके प्रॉपर फंक्शन में करेंगे, तब उस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। जैसे y is equal to sin x square, okay, but before that we know that sin x differentiation is cos x, but here x square, so x square यहाँ पर हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से कंपोजिट फॉर्म हो गया। फिर उसको डेरिवेटिव्स करने के लिए आप यहाँ क्या करते थे, प्रीवियस क्लास में सपोज करते थे लेट t is equal to x square and both side differentiate with respect to t or x. X means dt by dx is equal to d by dx of x square. So dt upon dx is equal to 2x. Save this answer. Okay. And again convert क्या हो गया, y is equal to sin x square suppose t. तो कंडीशन बन गई sin t की। अब sin t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है x का, बट मीन फुलफिल नहीं हो रही ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बस यहाँ पर क्या है t है, x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, बट t को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपोज फॉर्म में लेके चलेंगे। लाइक अगेन dy by dx dy dx sin t, डिफरेंशिएशन यही होगा ना, बोथ साइड हमने d by dx का ही डिफरेंशिएशन किया, बट इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यस इसमें सेट करना पड़ता है। लाइक dy by dx is equal to d by dt sin t and dt upon dx। क्या किया गया यहाँ पर, एक तरीके से हमने dt से मल्टीप्लाई कर दिया और dt से डिवाइड कर दिया। तो मीनिंग क्या निकली हमारे पास, जब हमने dt से डिवाइड कर दिया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने एक पेयर फॉर्म जनरेट कर दिया d by dt sin t एंड रिमेनिंग पार्ट हो गया dt अपॉन dx। तो ये जो वैल्यू dt अपॉन dx यहाँ बचती है, फाइनली आप यहाँ पर इसको सपोज करके फाइंड आउट कर चुके होते हैं। dy by dx is equal to d by dt sin t, रेस्पेक्ट फुलफिल हुआ, तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t एंड dt by dx ऑलरेडी आप सॉल्व कर रही है 2x, so 2x cos and what is the t, x square. This is the differentiation part of the given function. Okay, so अब यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, इसीलिए डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आपने क्या बोली, द फाइंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो सारी चीजें फंक्शन पे बेस्ड है। अब फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कंपोजिट फॉर्म में होता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन की मीनिंग क्या हो जाती है, इम्प्लिसिट फंक्शन की मीनिंग क्या हो जाती है, दोनों तरफ, यानी एक तरीके से जिसके रेस्पेक्ट में हमको फाइंड करना होता है, वहां पर एक अननोन वैल्यू की तरफ से dy by dx ऑलरेडी रहना चाहिए, तब वो इम्प्लिसिट के फॉर्म में बनेगा, तब वो प्रूविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यूजफुल होता है। ओके, बट इस क्वेश्चन में कहीं पे भी हम लोग का डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट या क्वोशिएंट रूल या लिबनेज रूल का यूज नहीं हुआ। लाइक सपोज y is equal to f1 into f2, this is the product function, so differentiate dy by dx is equal to d by dx of f1 into f2, so tell formula of product rule, f1 into d by dx of f2, simply f1 d by dx of f2 positive, f2 differentiation of f1 simply, and again y is equal to f1 upon f2, otherwise numerator upon denominator, this is the
quotient rule. Tell differentiation of quotient rule. dy by dx is equal to denominator is of differentiation of numerator minus again numerator is of differentiation of denominator total upon denominator स्क्वायर. ठीक, इसमें कोई भी लोग सिंबल यूज कर सकते हैं. प्रोडक्ट रूल इज लिबनेज रूल एंड क्वोशिएंट रूल आल्सो क्वोशिएंट रूल अपन अपॉन f2. ओके, टेक वन एग्जांपल. y is equal to sin cos x square differentiate sin cos x square with respect to x. So in this question product rule also given and derivative parts also. Firstly let cos x square. Okay, so t is equal to cos x square suppose and differentiate with respect to x. dt by dx is equal to d by dt cos x square, but we can write d by dt cos t and d by dx of x square. एग्री? डायरेक्ट एग्री. अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि मोर देन चेन रूल के अकॉर्डिंग मोर देन 2 3 टर्म्स आ सकते हैं ना. तो फर्स्टली हमने t सपोज किया, t के बाद u भी सपोज कर सकते हैं, u के बाद v भी सपोज कर सकते हैं. तो उसको लिखने से अच्छा था कि जब हमने सिर्फ सपोज t कर लिया तो cos x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है सॉलिड, क्योंकि हमने उस चीज को t लेट किया जिसके बाद हमारी जो फ्रेमिंग बनेगी sin t की बन जाएगी. और sin t का सॉलिड डिफरेंशिएशन हम जानते हैं cos t. तो हमको उसी चीज को सपोज करना चाहिए कि जिसको हम सपोज करें उसका भी डिफरेंशिएशन सक्सेसफुल हो और सपोज करने के बाद जो कंडीशन बने उसका भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए. आप सिर्फ डायरेक्टली वो चीज लेट नहीं कर सकते. सपोज आपने बोल दिया सर sin x स्क्वायर को t लेट करें, गलत है. तो बात को समझिए, आप डेरिवेटिव्स में सिर्फ उस चीज को t लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन आप कर सकें और लेट करने के बाद जो कंडीशन बने उसका भी डिफरेंशिएशन हो सके. बस अगर ये चीजें हो गई तो आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं. तो cos x स्क्वायर को आपने t सपोज किया जिसको हमने dt के फॉर्म में लिख दिया, बट दिस इज x दिस इज t. डेरिवेटिव पार्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इसको x के रिस्पेक्ट में लिखना सही समझा. ठीक, तो d by dt cos t जो t हमने सपोज किया फिर से यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया यहाँ पर इस फॉर्म में ले लिया. अब यहाँ पर cos t, तो cos t का मतलब हो जाएगा माइनस sin t एंड x स्क्वायर की मीनिंग हो जाएगी 2x, बट माइनस 2x sin t. व्हाट इज t? यहाँ का t क्या हो जाएगा x स्क्वायर. तो माइनस 2x sin x स्क्वायर ये सेव हो गया. अब अपने फाइनली क्वेश्चन पे आइए. y is equal to sin t, then dy by dx is equal to d by dt sin t and dt upon dx. So d by dt sin t means cos t and dt upon dx solid value minus 2x sin x square mentioned in the bracket and lastly minus 2x sin x square and lastly cos t. But what is the value of t? Total value cos x square. So in the bracket cos x square. Okay, but अब अगर इसमें करना भी है आपको t u v and so on जितने भी टर्म्स आते हैं आप करते जाइए, बट उससे बचना है तो एक ही लाइन में एट अ ग्लांस स्प्रेड करते जाइए. इसको लिया
नहीं हो रहा, नेक्स्ट डी बाई डी नहीं हो रहा, दिस एक ही लाइन में अटेंडेंस हो जाए। तो रफ वर्क से हटेंगे। अगर रफ वर्क में जब लंबा क्वेश्चन आता है तो कोशिश करा करिए कि इंटरनली हम उसको चेंज कर दें। या बट इन द 12th स्टैंडर्ड मोर देन 2 टर्म्स 3 टर्म्स आते ही आते हैं, उसको करना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू सिंपली tan 2x plus 3, tan 2x plus 3. So use the trigonometric formula and directly tell the answer. I think 2 sec square 2x plus 3. Satisfied? ठीक। But suppose again let t is equal to 2x plus 3 because हम tan t का डिफरेंशिएशन जानते हैं और 2x plus 3 का भी डिफरेंशिएशन जानते हैं, ठीक, इसीलिए सपोज किया गया इसमें। dt by dx is equal to 2x plus 3 का डिफरेंशिएशन 2x plus 3 का डिफरेंशिएशन 2 ax minus b का डिफरेंशिएशन when 2x plus 3 का डिफरेंशिएशन 2 हो सकता है तो ax minus b का डिफरेंशिएशन अगर आप समझी होंगे तो बोल देती हैं आंसर, ठीक। तो सिंपली है x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा। d by dx of x 1 and d by dx any number any constant differentiation is 0. So 3 का 0 हो जाएगा, x का 1 होगा, but 2 constant है, 2 1s are 2, डायरेक्टली इसका आंसर 2 आएगा। dy by dx is equal to d by dx of tan t, ये ओरिजिनल फॉर्म हुआ। बट यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए अपने आप ही ऐसा करते हैं कि dt से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, dt से डिवाइड कर देते हैं और लिखने का तरीका हो जाता है d by dt tan t and dt upon dx। बार बार ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वैल्यू पहले से आप स्टोर करे रहते हैं। तो इस तरीके से dt by dt tan t का बन गया sec स्क्वायर t, व्हाट इज t, इनटू dt by dx, यहाँ लिखिए, ठीक, आंसर हो। And now implicit function, okay? Find dy by dx if y plus sin y is equal to cos x given, okay? So this is implicit function, यानी हम जनरली y फंक्शन को ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, बट यहाँ पर फंक्शन जैसा कुछ नहीं है, इसको हम फंक्शन जनरेट करेंगे। बट फंक्शन जनरेट करेंगे तो y की वैल्यू डायरेक्टली x को भी बिलोंग करेगी और y को भी बिलोंग करेगी। अमूमन क्या होना चाहिए था कि fx कोई फंक्शन होता है वो x वेरिएबल को ही बिलोंग करता था, या f0 कोई फंक्शन होता था वो 0 फंक्शन को बिलोंग करता था। बट इन द राइट हैंड साइड दो डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं तो f की जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर एक वेरिएबल्स को बिलोंग नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। सो वी कैन राइट y plus sin y is equal to cos x. So y is equal to cos x minus sin y, ये भी चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज हम बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डायरेक्टली, इसको इस फॉर्म में लिखने की भी जरूरत नहीं। तो अगर इसी चीज को हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ with respect to x in terms of y, like d by dx of
y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सॉलिड डिफरेंशिएशन बस यही हो पा रहा है, बाकी डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। बट डी वाई बाई डी एक्स तो स्टोर होगा जो आपको निकालना है। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस इज एक्स दिस इज वाई, बट हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो जब वहाँ पर आप dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर सकते थे तो सेम प्रोसेस आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy sin y एंड dy बाई dx। तो dy कैंसिल आउट होगा, तो हमने इसी चीज़ को दोबारा लिख दिया, बट हमारे लिए मीनिंग फुलफिल हो गई। इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। So here dy common, dy by dx plus dy of sin y cos y and dy by dx is equal to minus sin x. So in the left hand side dy by dx total common 1 plus cos y is equal to minus sin x, then dy by dx is equal to minus sin x total upon 1 plus cos. This is the differentiation of implicit function। बिल्कुल हुआ। लास्ट में भी डिफरेंशिएशन के बाद क्या बना रहा, implicit function। फाइनली अगर यहाँ से y एलिमिनेट हो जाता तो ये implicit function नहीं होता। And next, suppose y is equal to sec tan under root x। ओके, तो ये इस और ब्रैकेट से अगर प्रॉब्लम होती है तो इसको कर्ली ब्रैकेट में आप अपने से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में तो सही लिखा रहता है, बट हम आप जब लिखेंगे तो मैच करता नहीं है, कर्ली फॉर्म में कर दिया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x sec tan under root x। ओके, फाइनली दिस इज कंपोजिट। इसमें क्या सपोज करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए, tan under root x को पूरी तरह से सपोज करना पड़ेगा t। लेट t इज इक्वल टू tan under root x। okay, and again t is equal to tan x to the power half लिख सकते हैं। and again differentiate with respect to x like dt by dx is equal to again d by dx of tan x to the power half, but d बाई यहीं पर सपोज कर लेते हैं, x के बाद इसको हम u सपोज कर लें, तो d बाई डी यू tan u एंड d बाई डी एक्स ऑफ u। तो u हमने किसको सपोज किया, tan u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u एंड u इज x टू द पावर हाफ, x टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन 1/2 x टू द पावर -1/2। श्योर, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन x की पावर -1/2। एग्री हो? श्योर ना? n n -1 1/2 -1 मींस -1/2। तो अगेन 1/2
x to the power -1/2 and sec square u is x की पावर हाफ. तो फाइनली we can write 1/2 under root x sec square under root x. This is the value of dt upon dx. And lastly here y is equal to sec t. This is the new question. बन गया. अब इसके बाद जब इसका डिफरेंशिएशन होगा dy by dx is equal to again dy dt sec t and dt upon dx. sec t differentiation sec t tan t and total value of dt upon dx this like sec square under root x total upon 2 under root x. But sec t, what is total t? Tan under root x into tan t again tan under root x into sec square under root x total upon 2 under root x. ठीक. तो इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इस तरह के क्वेश्चनों की अगर लेंथ निकलेगी तो 2 मार्क्स का मिनिमम हो सकता है, नॉट मोर देन 2. स्टेप में इतना तो शो करना ही पड़ेगा. फाइनली अगर ओरली क्वेश्चन करने की कोशिश करते भी हैं तो इसके बाद कितना ओरल दिखाएंगे, कितना ओरल दिखाएंगे. हाँ एक लाइन ना, तो एक लाइन में आप सिस्टमेटिक करते चले जा रहे थे ना, चैन बनाते चले जा रहे थे. आपके पास उस समय बोर्ड कॉपी की लेंथ भी होती है, आप कर सकते हैं, बट अपनी मैनुअल कॉपी में प्रॉब्लम होने लगती है, वो चीज़ हो जाएगी. नहीं नहीं यू फॉलो द चैन रूल ना, फॉलो द चैन रूल है भी इसमें. ओके. एंड लास्ट y is equal to sin ax plus b total upon cos cx plus d. Okay, so again use the quotient rule and follow the chain rule. Again आप इसको भी एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो, एक ही साथ हो सकता है. This is the f1 upon f2 part. So firstly apply the product rule. dy by dx is equal to directly numerator stop cx plus d, but differentiation of numerator directly किया जाए तो differentiation of numerator क्या निकलेगा, a cos plus b डायरेक्ट लिखा गया, माइनस अगेन sin ax plus b stop differentiation of denominator means c and minus plus sin cx plus d total upon cos square cx plus d. कोई कॉमन है यहाँ पे, cos cx plus d, cos ax plus b, sin ax plus b, sin cx plus d. All terms are different. ये सारे टर्म्स डिफरेंट हैं तो सिंपली एक ही लाइन में आपने अपना डिफरेंशिएशन पार्ट सॉल्व कर दिया. ठीक. इन केस न्यूमरेटर पार्ट में अगर कोई चीज़ मिनिमाइज होती तो मल्टीप्लाई करके या कॉमन लेकर के किया जाता, बट यहाँ कोई चीज़ हो नहीं रही. सब चीज़ डिफरेंट है. ए सी साइन ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी आर डिफरेंट. ओके. Lastly
दिस इज द स्टैंडर्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे मिलता है तो सही तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। सो फाइनली ये क्या एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक, डायरेक्टली इसको एक फॉर्म में करने की कोशिश किया जाए। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, सो dy बाई dx सिंपली x क्यूब 3x स्क्वायर, बट दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, लग गया प्रोडक्ट, तो प्लस x स्क्वायर स्टॉप किया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्रोडक्ट साइन प्लस अगेन y को स्टॉप किया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस अगेन प्रोडक्ट रूट, x को स्टॉप किया बट y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। y स्क्वायर प्रॉब्लम हुई ना यहाँ पे, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, d बाई dy y स्क्वायर एंड अगेन dy बाई dx। ठीक, y के साथ ये चीज फॉलो कर लीजिए, सिर्फ उसमें क्या होगा एक स्टेप हमको नीचे लिखना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट x स्टॉप y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट साइन y स्क्वायर स्टॉप x का डिफरेंशिएशन 1 एंड प्लस y क्यूब अगेन dy बाई dy y क्यूब एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट टर्म। ठीक, दिस पोर्शन दिस इज इक्वल टू 0 दिया था, तो इज इक्वल टू 0 हो भी जाएगा। इसमें जब हम ट्रांसफर करेंगे -81, तो -81 के साथ ये 0 हो गए, कंप्लीटली हमारी कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक इक्वल पार्ट चल रहा है। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई भी कर दीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस दिस इज x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy प्लस x 2y dy बाई dx प्लस ओनली y स्क्वायर प्लस हियर 3y स्क्वायर एंड dy बाई dx। ओके, सो dy बाई dx अगेन टोटल हम लोग क्या कर लेते हैं, dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं। तो dy बाई dx को कॉमन लेने की मीनिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली ये dy बाई dx इधर ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, ये माइनस होगा, तो dy बाई dx को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे माइनस dy बाई dx एंड अगेन dy बाई dx सिर्फ हम लोग कॉमन ले रहे हैं, dy सारे टर्म में से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं एंड dy बाई dx कॉमन लेंगे 1, चलिए माइनस एक्स स्क्वायर एंड लास्ट माइनस 2xy dy बाई dx एंड माइनस 3y dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ओके, तो इन द लेफ्ट हैंड साइड dy बाई dx टोटल कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट जो कॉमन है बचेगा वो डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड चला जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन राइट हैंड साइड। अब उस बिहाफ पे जो इक्वेशन बन रही है अगर वो फैक्टराइज फॉर्म में हो रही है या आइडेंटिटीज फॉर्म में सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आंसर वही हो जाएगा। ठीक, 81 का यूज क्या करता है, 81 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, मेरे चाइल्ड में कोई वैसे नहीं यूज नहीं 81 तो 0 कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में करेंगे 0, कोई मीनिंग ही नहीं है इसको। सर, तो ऐसा भी हो सकता था कि बीच वाले या बीच में भी वैल्यू अप्लाई कर सकती थी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो LHS बिलोंग टू MHS एंड MHS बिलोंग टू RHS, ये हम कर रहे हैं, आप RHS बिलोंग टू LHS कर दीजिए, सेम आंसर। ठीक, ओके, सो
फर्दर आफ्टर डिफरेंशिएशन इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस रहेगा एंड इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक बेस आइडेंटिटीज रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।